Good morning, all of you. Today we are started the new third module. Beginning of third module, we review which is the depending on the best concept, and the concepts are social and cultural environment or technical environment and operative environment. Okay. Social culture is depend on the third module. And it's depend on social culture. See that. Cultural environment, technical environment, technological environment, and competitive environment. Out of this, today we are starting in social environment and cultural environment will cover the next part. Chapter number 9 is technological environment. Technological environment. Okay. In this point, we are studying first features. Second, the impact of technology. Impact of technology. And third, all are summarized of your topic. Okay, so let's start the first features. Start from features. The features, the success of cellular and the business, high depending on the types of technology is used, the level of technology developed, the speed within the new technology are adopted by diffuse, the technology touch approach, etc. For many years past in India, the past in India features did not have the familiar attribute towards the latest technology to meet latest technology leads to high cost and displacing development features and research. Internet attained the political independence affected prolonged colonies, rules and expansions the country entire the modern world in state of economy, backwardness and the poverty of largesse. After the introduction of liberalization of Indian economy, drastic change have come into the technological standard in India. However, the introduction of this policy, funds and importance were not easily provided for a unportable technology in India, and a lack of goods business opportunity, also very high duty structure. After the FDI, JVS, and MNC, FDI foreign direct investment, JVC is General Vehicle Service, and MNC multinational corporations, multinational companies. The following are the importance and features of the following are the features out of the feature number first. Accelerating piece of change. Accelerating piece of change. Many of today common products they are not available 40 years ago.
इन शॉर्ट अभी जो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो 40 साल पहले दिख भी नहीं रहे थे इंडिया में या है कि नहीं ये पता नहीं हो रहा था। ओके, in increasing number of ideas are being worked on time between the appearance of new ideas, their successful implementation, it almost dispense it is between the introduction of peak product and missing 19% of all scientific research. It is depend on R&D. इसके लिए हम क्या लिखेंगे R and D. R means research and D for development. तो ये जो डिपार्टमेंट रहता है बिफोर 40 years पहले R&D डिपार्टमेंट या HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये टू डिपार्टमेंट्स आर नॉट इन योर बिजनेस सेल्स। पहले जो होते थे वो प्रोडक्शन मैनेजर होता था, सेल्स मैनेजर होता था, डिपार्टमेंट होते थे ना, उस डिपार्टमेंट में R&D और HR डिपार्टमेंट कभी नहीं था या ऐसा होना चाहिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। इसके बाद जब अभी इसके ऊपर डिस्कस की जाती है तो R&D डिपार्टमेंट ये वन बाय वन डे बाय डे रिसर्च करता है कि कितना प्रोडक्ट और अच्छा बनाया जाए और कॉस्ट कम कॉस्ट किया जाए, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, नंबर ऑफ थिंग कर रहे हैं एंड दिस थिंकिंग को रिसर्च करके डेवलप किया जाता है एंड दिस डेवलपमेंट प्रेजेंट योर इन फ्रंट ऑफ यू, इस डेवलपमेंट इज प्रेजेंट ऑन फ्रंट ऑफ यू। अब ये किससे होता है और इसमें वो लोग 80 to 90% they are successful and 80 to 90% the successness है ये जो तुम्हें आजकल दिख रही है। फॉर एग्जांपल एक है ईवी, रिपीटिंग ईवी, इट इज इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स। 40 इयर्स पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इतनी पावरफुल रहेगी जितने आज के व्हीकल्स है। या 40 इयर्स पहले जो तुम्हारे पास स्कूटीज है, नंबर ऑफ एक्सिस है, एक्टिवा है, इसकी कोई अच्छी आइडिया नहीं थी कि वैसे व्हीकल्स भी जो नॉन गियर है वो गियर वाली गाड़ी की तरह अच्छे से विद पिकअप भाग सकते हैं। उससे पहले भी थे बट उस क्वालिटी के नहीं थे, वो मैक्सिमम 20-30 की स्पीड पकड़ते थे, ज्यादा आवाज करते थे, नॉकिंग होता था, फ्यूल इंजेक्शन कम था, उनका पावर पिकअप कम था। ये जो चेंज आया हुआ है बिकॉज ऑफ R&D डिपार्टमेंट, research and development department. It is the first feature. Then second feature is unlimited opportunity for innovation. Sorry, unlimited opportunity for innovation. Listen here. Scientific today, we are working on starlight range of new technology that will be the evaluation product and production process. Some of the most existing work is being done in biotechnology, computer and telecommunication. Okay, यहाँ उसकी कुछ खास बात नहीं बोला है, तो मैं यहाँ explain करना पसंद करूँगा। Unlimited innovation. First, innovation and invention. The two number of words is there. First is एक word is innovation. And second is invention. The both are different. Innovation मतलब reproduce करना, जो invention करते हैं उसको और अच्छे से डेवलप करना, और R&D डिपार्टमेंट वही करता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको और चेंज करके कैसा, जैसे कि ये फ्रंट है, ये फ्रंट का लुक कैसा चेंज करें कि बुक अट्रैक्टिव लगे, पर ईयर वही बुक का लुक बनने से तो उसमें क्या चेंज हो रहा है उसके ठीक करना। इन्वेंशन तो फर्स्ट बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने बुक बनाया, उसके बाद मेरे आगे वाला जो रहेगा या फिर मेरे बाद जो आएगा उसके बुक के लुक को चेंज करेगा, देन उसके ऊपर कोटिंग के बारे में सोचेगा। इट इज इन्वेंशन, ये जो चेंज ऑफ थिंग्स एंड बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज इजी। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होता है, तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है एंड और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। देन वेरिएंट्स आर इन, फिर से उसी बात को उसने बोला हुआ है, वेरिएंट
R&D budgets. Parents R&D budgets. Okay. अब यहाँ डिस्कस किस बारे में हो रही है? तो many companies are content to the put their money into the comparing competition product and making minor features and style improvement. Even basic research components as reports, results, and proceeding category are conducted by the customer companies rather than by the single companies. In this is increase in R&D department and research and development department. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनके बजट्स बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग न्यू इनोवेशन करने वाले और दिस इनोवेशन इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट होगी उसका हमें बेनिफिट होने वाला है। इंक्रीज इन रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी में डे टू डे या मिनट टू मिनट चेंज आ रहा है, बिकॉज में एक तुम लोगों ने कुछ किए, उसका डेवलप होकर कोई नया और डेवलप कर रहा है, उसमें न्यू एडवांस फीचर्स अप्रूवमेंट्स ला रहा है और उसका यूज हो रहा है। एंड दिस इज टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, मर्जिंग, लिबरलाइजेशन, नंबर ऑफ इफेक्ट ऑफ द अचीव पर बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। The impact of technology change of business activity. Then the next point is impact. Impact on टेक्नोलॉजी। आई नो ये सिलेबस थोड़ा हुआ है, फिर भी मैं रिकवर कर रहा हूँ फिर से। क्यों? क्योंकि हम ब्रीफली बहुत आगे जा रहे थे, रिकवरी भी हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी आफ्टर द बिजनेस मे बी द लेवल द मोर efficiency and employee in the more production is to be the company of additional or more business in touch within the customer base is the better. Better the change the build customer loyalty advantages technology make the possible as well as allowing employee from around the world towards via video conferencing and technology world. Technology allows small business to reach new economic market rather just selling the customer. The number of technological impact is there. First is reducing business cost. पहला क्या होगा? Reduce business cost. Listen, the business cost. Small business owner can be as use technology for reducing the business cost. Business technology has automate back offering functioning such as recording, keeping, accounting, and payrolling. Business owner can also use technology create security environment for maintaining sensitive business. Okay, then second is improve communication. Improve communication. Business technology can be help small business improve their communication process, email, texting, website, and etc. This can be helped less time consuming and all, and it is help to change your idea, your divert to the idea. Okay, then potential increase in business and social networking technology. That competitive. Okay, here come to the point कि हमने जो अभी तक इस यहाँ पे स्टडी की है, इसके ऊपर से हमें टेक्नोलॉजी के बहुत से पॉइंट पता चले, उसके ऊपर से आज के सिलेबस की कंप्लीट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है या तुम्हें सुस्त बना रही है। इन शॉर्ट, अब जो सुस्ती आ रही है बिकॉज ऑफ यार उसके साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जितनी लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा या हम वेल डेवलप दिखेंगे, वी लाइक टू चूज दिस टेक्नोलॉजी इज बेटर। और टेक्नोलॉजी का फर्स्ट एम वही होता है रिसर्च का कि वी प्रोड्यूस एंड वी वर्क फॉर डेवलप योर कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू मेक बेटर लाइफ, रिलैक्स लाइफ फॉर अस। अब जब इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें दो ही पार्ट यहाँ तुम्हारे सिलेबस में दिया है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नो मैरिट्स कैलकुलेट किया, यानी फायदे ही बोला हुआ, नो डीमेरिट्स, बट द रियलिटी इज डीमेरिट्स आर देयर। टेक्नोलॉजी इट मींस इट इज द आर्टिफिशियल एक्टिविटी, एंड ऑल आर्टिफिशियल एक्टिविटी एज वेल एज मैरिड एज वेल एज डीमेरिट, हमें दोनों की तरफ देखना है। यहाँ उसने सिर्फ मैरिट्स बताया हुआ है, डीमेरिट्स का जरा भी डिस्कस नहीं किया। व्हाई वी हैव टेक्स्ट जस्ट 1.5 पेज के स्टेटस, इतना छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो पहले उसने बहुत से फीचर्स बोला। तो फर्स्ट हमें ये मालूम करना है कि ये टेक्नोलॉजी कंसेप्ट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस का लेना देना क्या है। तो पहली बात है कि हमें बिजनेस में टेक्नोलॉजी क्या है मुझे पता करना पड़ेगा। तो छोटे से ऐप से बड़े ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तो एक स्मॉल सिस्टम बताऊं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग द आइडियाज ऑफ टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर, ये क्या है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज मेकिंग रिलीफ लाइफ फॉर एनी चार्टर अकाउंट। क्या करता है ये? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तुम्हें अकाउंट्स की बेसिक मेथोडोलॉजी से जो उसके अंदर कंसाइन किए गए, अडॉप्ट किए गए, ऑब्जेक्ट किए गए, उससे वो तुम्हारी एंट्रीज देता है और उस एंट्रीज के हिसाब से प्रिपेयर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के तुम्हें देता है। जिसने किसी ने टैली किया होगा उसको इस रिलेटेड पता रहेगा कि टैली ऐप कैसे बनता है। देन टैली से भी थोड़ा एडवांस सैप, साउथ एशियन अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम सैप। सैप ये इतना एडवांस है कि ये नॉट ओनली अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है बल्कि डे बाय डे ड्यूटीज टाइमिंग पीरियड, यानी जैसे तुम्हारा एंड्रॉइड मोबाइल काम करता है उस तरह होल वर्क बाय वन ऐप होता है जिसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्ले करने के बाद पूरी कंपनी ऑटो वर्क में आ जाती है। उसमें अलार्म भी रहते हैं, बिग टाइम का, शॉर्ट टाइम का, एंट्री एग्जिट ऑफ लेबर, लेबर चार्जेस, वर्क आवर कैलकुलेट करना वगैरह सब उसके अंदर होते हैं। सेकंड बोला, उसके बाद फिर सब एप्स बनाए हुए कैलकुलेशन फॉर टैक्स एंड ऑडिट। अब इसके बाद नंबर ये अकाउंटेंसी के बोल रहा है। देन अगर तुम आगे बढ़ेंगे अदर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। जैसे कि एक क्या बोलते वेट कैलकुलेट करने के लिए एक एडवांस वेट कैलकुलेट करने के लिए एक एडवांस तागड़ी क्या बोलते तराजू रखा होता है। तो तराजू में नॉट ओनली वेट या गुड्स रॉ मटेरियल डाला जाता है बल्कि उधर एडवांस टिप रहती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स चेक करना, डिफॉल्ट गुड्स को बाहर फेंकना, आगे सप्लाई करना। द मशीनरी आर जनरेटिंग दैट रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आईओटी, इंफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड ऑल नंबर को फॉलो किया जाता है और इस फॉलोअप से प्रोडक्शन में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रेडी टू प्रोड्यूस करते हैं और जो लो क्वालिटी होते हैं वो एग्जिट टू रॉ मटेरियल या रिटर्न टू सप्लायर किया जाता है। ये होने के बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जो मशीनरी यूज की जाती है रोबोटिक मशीनरी रहेगी, इस मशीनरी से को प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें इफेक्ट किए जाते हैं क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ पुटिंग मटेरियल वो फिक्स रहता है, रॉ मटेरियल रहता है तो उतना ही मिलेगा। एक चम्मच डालना है तो एक चम्मच के अंदर कितना नमक लेना चाहिए ये तुम्हें हर बार सोचना पड़ता है, बट उनके लिए वो mg में मिलीग्राम्स में फिक्स रहता है, उतना ही मिलता है एज पर मशीनरी डिमांड। ओके, ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स है। ये मेन टेक्नोलॉजी है जो तुम यहाँ डिस्कस कर रहे हो। मैं नॉट डिस्कस कर रहा था कि कंप्यूटर है तुम्हारे घर में तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, नहीं मैं क्या बता रहा हूँ कैसे। देन उसके बाद अगर ऑफिस डिपार्टमेंट में डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि एक रहता है एचआर डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन डिपार्टमेंट, मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते हैं बिजनेस सेंस में और ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल करना चाहिए तो रॉ मटेरियल के लिए वो किसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को कॉल करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल करेगा और पैसे मंगाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट उनके रिसीव फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा और पे कैलकुलेट करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैश डिपार्टमेंट या पेमेंट डिपार्टमेंट को देगा, वहां से पे करेगा और रॉ मटेरियल आएगा। ये इंटर रिलेटेड कनेक्टेड रहते हैं। अब इन कनेक्शन को लेंदी प्रोसेस बोला जाएगा क्योंकि ये इधर जा रहा है फिर वो उधर जा रहा है फिर उधर से लेटर ले रहा है वो लेटर लेके फिर पैसे मिल रहा है फिर इज अ लेंदी प्रोसेस।
इन दिस लेंथी प्रोसेस इफ अगर ऐसा हो जाए कि ये जो लेंथी प्रोसेस है उसको टेक्नोलॉजिकल कनेक्ट किया जाए, एक वेबसाइट बना के या इंटरनेट कनेक्शन वाया टेलीफोन, वाया अपस्ट्रीम नंबर, जो अंदर के अंदर फोन रहते हैं उसका 01 दबाने के बाद किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, 03 डिपार्टमेंट दबाने के बाद किस डिपार्टमेंट में, इस टाइप का एक पैटर्न बनाया जाएगा। और इस कोडिंग नंबर रहते हैं, जैसे कि तुमने अगर किसी होटल में रेस्ट किए होंगे तो रिजॉर्ट वगैरह में तो आ रहता है फॉर लंच प्रेस 03, फॉर कॉलिंग टू रिसेप्शन प्रेस 01, ये रहता है। फिर वहां से तुम लोग बात कर सकते हो। तो थोड़ी टेलीकम्युनिकेशन वो इंटरनल कनेक्शन रहते हैं, वैसे कनेक्शन ले सकते हो या टेक्स्ट सिस्टम रख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी यूज है तो कम्युनिकेशन पैटर्न, ये एक बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन पैटर्न के बाद तो रहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि फाइनेंस कैसा करें, फ्यूचर ओरिएंटेड बजट्स कैसे बनाएं। तो उसके लिए जो लास्ट बजट्स है उनकी रिव्यू करने पड़ते हैं। इफ टेक्नोलॉजी आर यूज, वो रिव्यूज हुए रहे, जस्ट रिव्यू करने और नेक्स्ट पॉलिसीज बनाने, मेकिंग ऑफ प्लानिंग एंड ऑल दैट। The number of ideas there, it is the best beneficial for us. अब ये है benefit. Then talk about the demerits of business environment में। अगर हम demerit देखेंगे तो demerit में सबसे बड़ा demerit है if you are to use technology, तो उस टेक्नोलॉजी की कोई भी बात हैक करके कोई भी कंपनी यूज कर सकती है। बहुत सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूँ, अगर तुम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उस टेक्नोलॉजी का डिमोड्स क्या है कि उस टेक्नोलॉजी को रीयूज किया जा सकता है। रीयूज किया जा सकता है मींस तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वाया सर्वर कनेक्टेड रहेगी। अगर वो सर्वर हैक हो जाए तो वो सर्वर हैक होने के बाद हाउ कैन यू बिकम बेस्ट, तुम कैसे बेस्ट हो ये फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा और उस बेस्ट से तुम इजीली कैच कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की कंपनी है और टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड अच्छे से काम कर रही है और काम करते करते ऐसा हो गया कि महिंद्रा को ऐसा लगा कि टाटा इतना डेवलप की बोलिए चलो फाइंड आउट करते हैं। यानी हायर टू दूसरे दो हैकर को हायर किया और उन लोगों ने हैक कर दिया उनकी सब पॉलिसी प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड जो कुछ भी रहता है वो इजीली हैक हो जाता है और हैक हो जाने के बाद उसका हम इजीली मिसयूज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग कि मिसयूज के साथ उसको मिसयूज करना या खुद के लिए यूज कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे हैकिंग से हमें बचना है। देन अगर रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन देखेंगे तो माँ के हाथ का बना हुआ खाना या किसी पर्सन के हाथ का बना हुआ खाना और मशीनरी के हाथ से बने हुए खाने में जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, क्योंकि मशीन हैव नो फीलिंग्स, वो फीलिंग्स नहीं रहती तो उसको नहीं पता रहता कि किसको कितना तीखा लगता है या कितना मीठा लगता है। द सेम क्वांटिटी प्रोडक्शन इज दैट, एक सेम क्वांटिटी का प्रोडक्शन बन रहा है। अब स्वीट के लिए वो ठीक है कि स्वीट कितना भी सेम क्वांटिटी बनेगा चलेगा, सब कुछ स्वीट ठीक है। लेकिन अगर स्पाइसी बन रहा है तो किसको कितना स्पाइसी चाहिए उसकी नो आइडिया रहती है। क्यों? क्योंकि मशीनरी हैव नो फीलिंग्स एंड नो थिंकिंग। तो वो जो चीज बनानी चाहिए वैसे नहीं बना पाते, जस्ट प्रोडक्शन करते हैं और सेल होता है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि हमारे टेस्ट एंड हैबिट्स ये जो फीचर है वो इफेक्टेड होता है और चेंज होता है। अब टेस्ट एंड हैबिट चेंज होने की वजह से जो सेल है वो रुक जाता है एंड इफेक्टेड ऑन बिजनेस। देन कंज्यूमर डिमांड सर्वे, कंज्यूमर डिमांड के कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मशीनरी नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें इंटरेक्शन खुद को वहां फेस कराना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है और जो कंज्यूमर की डिमांड है वो मशीनरी के ऊपर इफेक्टेड नहीं कर सकते। यानी अगर कोई वड़ा पाव वाला कोई मशीन बनाए वड़ा पाव बनाने की तो वो उस क्वालिटी का वड़ा पाव नहीं दे सकता जो फर्स्ट दे रहा है, क्योंकि किसी को चटनी ज्यादा लगती है किसी को चटनी कम लगती है। लेकिन मशीनरी में फिक्स रहेगा कि इतना ही डाला जाएगा और तुझे दिया जाएगा। तो तू मशीन में बोल नहीं सकता कि मशीन थोड़ी चटनी कम करो यार, कोई रोबोटिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुम्हारे स्पाइसीनेस को कम या ज्यादा कर सकती है, तुम्हारे टेस्ट के हैबिट को बेस्ट कर सकती है। ये हुआ। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर डिस्कस करेंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो एप्स रहेंगे वो एप्स डेट वाइज रहेंगे। तुम्हें अगर अकाउंटेंसी को प्रॉपर सीखा होगा तो तुम्हें पता रहेगा फाइनेंस का रिलेशन कैसा रहता है, डेट से रहता है।
ऑन टाइम डेट एंट्री हुई तो ठीक है, वरना आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि तुम्हें बाद में रिकवर करना पड़ता है, उसके लिए फिर से सीए एंड ऑल को करना, हायर करना पड़ता है। तो ये जो मेन पार्ट है, ये जो मेन पार्ट है उसके ऊपर इफेक्टेड होता है। हर डिपार्टमेंट में उसके ड्रॉबैक्स है। दैन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इज अ बिग पॉइंट, कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं वाया इंटरनेट एंड ऑल, सोशल मीडिया एंड ऑल, उसका रिकॉर्ड दोनों टाइप रहता है। यानी तुम कितना सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, बातें छुपा रहे, उसका इतना इफेक्ट हो जाता है कि उस इफेक्ट को हम नॉट रिकवर करते हैं। और वही बात तुम्हारे लिए एक लीगलिसिस बन जाती है, या एक प्रूफ, लीगल प्रूफ बन जाता है, which is easily covered to your business, and वो इतना इफेक्ट कर जाता है कि तुम्हारे बिजनेस को हायर कर सकता है। और नॉट ओनली हायर, बल्कि तुम्हारे बिजनेस के ड्रॉबैक्स, वीक पॉइंट को कैच करेगा, और उस वीक पॉइंट से तुम्हें वो लॉस्ट कर सकता है, यानी तुम्हारे डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व करना इज नॉट इजी, किसी बिजनेस को, शुरू बिजनेस को बंद करना नॉट इजी, बट अगर तुम्हारे कंपेटिटिव को ये स्टडीज मिल जाए फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो उसको इजीली कर सकते हो। ओके गाइस, ये था तुम्हारा चैप्टर टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग टू टुमारो, और द नेक्स्ट वीक वी आर स्टडी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस, और उसमें कंपैरिजन देखेंगे। ओके, मैं यहाँ आज पॉज करता हूँ और इसके साथ एक रिवीजन लेक्चर प्ले करूंगा, क्योंकि तुम्हारी यूनिट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।